Good morning, ninth class students. How are you? I'm fully sure that your study is going well. We are today discussing the constitutional chapter, and I have sent you the part 1 video. Now this is the part 2. Okay, so if you have any query, please comment. Okay, and we are discussing South African Constitution. First of all, you have to know the characteristics of South African Constitution. First of all, it saves the basic rights of its citizens के जितने भी राइट्स हैं वो सेव हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में. साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, उसको ये बोलते हैं. दैट इज़ गुड फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड इससे डेजिग्नेट करते हैं, स्टेटमेंट से डेजिग्नेट करते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को. ओके, सेकंड इज इट गिव्स इक्वालिटी एंड डिग्निटी टू ऑल द ह्यूमंस ऑफ साउथ अफ्रीका. टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एक्चुअली, इक्वालिटी and dignity to all the humans of South Africa. Dignity in the form of if anybody is working as labor, if working is anybody is working in different perspectives, different job, whatever, whether cleaning, houses, painting, जो कोई भी काम करता है उसके डिग्निटी को रिस्पेक्ट करता है ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, the constitution will be run in parliamentary way. Everything is running through discussions, proper discussion, proper voting, not direct rule over there. Okay, on the spot कुछ भी decide नहीं होता. They all deciding through parliamentary form of government means there are legislative, executive, judiciary is there like India. It gives religious freedom to its citizens. Religious freedom, they can adopt any type of religion there, South Africa, because that is not a religious country. They can get religious freedom, and religious freedom, right to religion is in Indian Constitution 25 to 28. You have to remember it, right to religion. Second is fifth is there is a freedom of political parties and media groups like India. Okay, and one more thing, what we adopted as Indian from South African Constitution, that is very very important student. साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन 1994 में बना और इंडिया ने उससे क्या अडॉप्ट किया था. ठीक है, इंडिया अडॉप्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, कि अमेंडमेंट कैसे करना है, चेंजेस, अमेंडमेंट मीन चेंजेस कैसे करनी है. इफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल article or constitution provision is invalid in the present form, okay, so that can be dissolved in the South African Constitution. वो change हो सकता है in the new world order के according. ठीक है, so I am giving you example that sentence to death, फांसी की सजा किसी को देना, that was the old tradition. Nowadays the countries are changing this punishment. They don't want in the life to sentenced. ठीक है, मतलब वो फांसी नहीं देने के मतलब वो फेवर में है the countries. Now if the constitutional South African Constitution want to change this system, then they can definitely amend this. That's why the South African Constitution is known as living document of this country. Living document वो बोलते हैं. That's why in India, Indian Constitution is also called living document, because according to the circumstances or situation, we can change some rules or articles in our documents. Okay, and second adoption or borrowing, we have done the election of Rajya Sabha members. ये दो चीज़ें हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस डिस्कशन. ओके, आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites and atrocities they had committed while in power. देखो कितनी अच्छी बात है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन इन who ruled in South Africa most of part, that is British.
ब्रिटिशर्स और अदर imperial powers, अदर पावरफुल पावर्स, ठीक है, उन्होंने साउथ अफ्रीका को रूल किया. यू नो, आफ्टर द मेकिंग ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट दे हैव डन दैट ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू फेलो ब्लैक्स, कि जितने भी पॉपुलेशन थी साउथ अफ्रीका की, टू फॉरगिव द वाइट्स, कि उनको माफ़ कर दो. दिस इज लुक एट द काइंडनेस ऑफ देयर पीपल, कि उनको माफ़ कर दो. अदरवाइज इंडिया में क्या होता, इंडिया में किसी ने अगर बहुत टाइम से रूल किया होता है, समटाइम्स शोइंग इन मूवी, कि अगर कोई रूल कर रहा है तो उसको आफ्टर गेटिंग ए फ्रीडम तो आप उसको डायरेक्ट मार देते हो, कि उसको मार दो, किल कर दो, बिकॉज दे रूल्ड अस, दे यू नो ब्लेम्ड अस टोटली, दे हैरेस्ड अस. तो ये सब चीज़ें साउथ अफ्रीका में भी हुई. बट दे हैव डन द फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटी. एट्रोसिटीज मीन्स किलिंग इन मास स्केल, जहाँ पर बहुत मास स्केल में किलिंग हुई हो किसी सिटीज़ में, उसको बोलते हैं एट्रोसिटीज. दैट दे हैव कमिटेड वाइल इन पावर. दे सेड लेट अस build a new South Africa based on equality for all races and men and women, on democratic, second feature, on democratic values, social justice. Social justice means social law is there, no one can blame or no one can harass anybody. Everybody's self-respect is important in South Africa. Social justice and human rights, इनके ऊपर values की important. The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. किसने बनाया? The party that ruled through oppression, उस पार्टी जिसने oppression के थ्रू किसी को दबा के, ठीक है, रूल किया. दैट द लेड द फ्रीडम एंड ब्रूटल किलिंग, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया लिटिल बिट. एंड द पार्टी लेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल, और जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी. ओके, सैट टुगेदर, एक साथ बैठे. लुक एट द काइंडनेस और प्रॉपर वे टू मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. सैट टुगेदर टू ड्रॉ अप ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. और दिस इज वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स दैट ओवर 2 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब 20 लाख लोगों ने साउथ अफ्रीकी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने लोगों ने बनाया? अबाउट 385, आफ्टर पार्टीशन 279, इतने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है. दैट्स वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो नोन एज द बैग ऑफ बोरोइंग. ये आपने छोटा सा याद रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और क्या बोलते हैं हम? द बैग ऑफ बोरोइंग, द बोरोइंग फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज. तो आपको कौन कौन सी कंट्रीज से बोरोइंग इंडिया ने किया है ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल ना. ओके, एंड नाउ द आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, सेम टाइम विद इंडिया एंड डिबेट, दे केम आउट विद one of the finest constitution of the world. ये आपने याद रखना है. Another feature, South African constitution is known as the finest constitution of the world has ever had. The constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. Together they decided that in search for a solution to the problems, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए, nobody should be excluded, किसी को भी हमने हटाना नहीं है, किसी को भी हमने अलग नहीं करना है. excluded, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है. नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डेमन, राक्षस बुला के किसी को नहीं बोलना है कि कोई राक्षस है. दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकेम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. whatever they might have done for represented in the past. The preamble of the South African Constitution sums up the spirits. Okay, और preamble like in India, we the people of India having solemnly resolved, ठीक है. तो ये preamble है. But the difference is there, the preamble of Constitution is the responsibility of every South African citizen takes on. कि preamble जो साउथ अफ्रीका की प्रेम्बल है उसको हर सिटीजन को पता होना चाहिए. एंड इफ दे वोलेट दैट इज कैन बी नॉट गुड फॉर द साउथ अफ्रीकन. मीन्स साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को प्रेम्बल को रिस्पेक्ट करना है, उसको रिस्पेक्ट प्रेम्बल को जानना है. एंड बट इन इंडिया मोस्ट ऑफ द इंडियंस डोंट नोट अबाउट द प्रेम्बल.
what are the basic authorities in the preamble, what is the preamble, यही इंडियंस को पता नहीं है. तो what is the preamble? It is known as the door of the constitution. Door of the constitution means if you want to know the constitution, then you have just go through the preamble. That means 50% constitution you have studied. Basic things are set up in preamble. कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक थिंग्स कि कंट्री कैसी है, कंट्री आगे कैसे होगी, हमारा विजन क्या है, विजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज द प्रीएम्बल. तो किसी भी सिटीजन्स को अगर प्रीएम्बल का पता है, दैट सिटीजन कैन नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर कंट्री. Now, further moving, the South African Constitution inspired Democrats all over the world. जितने भी कंट्रीज के, वर्ल्ड कंट्रीज के डेमोक्रेट्स थे, दोज हु आर द फॉलोअर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, तो वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं. ओके, अ स्टेट डिनाउंस बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल 1994. पूरे वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका को बिल्कुल मतलब पुअर कंट्री बोलते हैं आज भी. वन इज नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. ये आपको याद रखना है अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में कौन सी कंट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं? अगर डेमोक्रेसी को हमने जानना है तो सबसे बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है आफ्टर 1994? दैट इज साउथ अफ्रीका. ओके, but according to the new report of best democracies in the world, the South Africa rank is 40. ठीक है, साउथ अफ्रीका का रैंक कितना है? 40. और फर्स्ट रैंक इज नॉर्वे, द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. अभी नॉर्वे है, सेकंड इज आइसलैंड. ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द बेस्ट डेमोक्रेसीज लिस्ट? दैट इज 51st. ओके, 51st और 51 रैंक है पूरे वर्ल्ड में, तो बेस्ट डेमोक्रेसीज. ठीक है, 51 और साउथ अफ्रीका का 40 मीन्स लिटिल बिट क्वाइट गुड विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 40 रैंक. ओके, और इंडिया का 51. ये आपने रिमेंबर रखना है स्टूडेंट्स. एंड नाउ next, what made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together. इकट्ठे काम करना है, to transform bitter experience into the binding glue of the rainbow nation. हमने मीन्स डिफिकल्ट हिस्ट्री से अब ट्रांसपोर्ट होना है टू ग्लू ऑफ रेनबो नेशन. 7 कलर्स मीन्स मल्टी कलर्स, मल्टी डायमेंशनली साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाना है. स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सर, नेल्सन मंडेला ने एक बार बोला था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड फ्यूचर. हम दोनों टाइम की बात करते हैं. Students, don't forget about your past, because whatever you are in present, that is the इमेज ऑफ पास्ट को नहीं भूलना है आपने. बिकॉज जो हमारे पूर्वजों ने, एनेस्टेसिस ने जो वर्क किया, स्ट्रगल्स किया, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. व्हाई दे स्ट्रगल्स, व्हाट फॉर दे स्ट्रगल्ड. ओके, सो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के में मंडेला जी ने बोला कि वी आर also speaks both the past and future. On the one hand, it is a solemn pact in which we as South Africans declare is one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. हम इसको again adopt नहीं करेंगे. Means apartheid, starting of the lesson I told you, racism, ब्रूटल एंड रिप्रेसिव पास्ट, हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे. बट इट इज मोर देन दैट, इट इज आल्सो चार्टर. कॉन्स्टिट्यूशन को अनदर फॉर्म में हम चार्टर भी बोलते हैं. रिमेंबर स्टूडेंट, CHARTER, चार्टर भी बोलते हैं. ओके,
charter for the transformation of the country into one which truly shared by its all people, a country which is the fullest sense belongs to all of us, black and white, women and men. ये बहुत बड़ी बात है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की. ओके, तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है स्टूडेंट्स. ये आपने करना है. यू हैव टू डू विद योर सेल्फ, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर टू नो मोर अबाउट साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति में, इससे बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज महात्मा गांधी स्पेंट लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर. और इंडिया की वी हैव गिवन नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न, और नॉट इंडिया गिवन भारत रत्न अवार्ड टू नेल्सन मंडेला. ओके, ये आपने याद रखनी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है जानने के लिए और इसकी चीज़ों को समझने के लिए. ठीक है. नाउ वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत किसी भी कंट्री को क्यों होती है. कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन is the supreme law of the country. It is a document where all the rules and regulations are prescribed. ठीक है, ठीक है. ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हाउ टू गवर्न ए कंट्री, कंट्री को कैसे गवर्न करना है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ द कंट्री, एंड हाउ द कंट्री विल रन, डेमोक्रेटिक वे, प्रेसिडेंशियल वे, डिक्टेटर वे. ठीक है, तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डिज़ाइंस होती हैं. There is also constitution of trafficking means traffic control के constitution होता है. If just suppose if a traffic controller is not there in the road, what would happen? Cross road, जब जहाँ पर चारों तरफ roads होते हैं on the four sides, if the traffic controller is not there, then what would happen? Everybody will trying to move away on the spot as soon as possible. So what would be there? Lots of cars in one place, hurdle and burble would be there. So if traffic controller, what done? One side road, cars can go, other can stop. Now others can go, next one can stop. तो ये सिस्टम की जरूरत कब होती है? When there is a proper rule and regulations are there. Okay, so that's why we need a constitution. Now what is there over there? The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do. The oppressor and the oppressed in the new democracy were planning to live together as equals. साउथ अफ्रीका में क्या किया? द ऑप्रेसिव, जो ऑप्रेसर थे, जिन्होंने रूल किया साउथ अफ्रीका में, और जो ऑप्रेसिव थे, ऑप्रेसिव जिन्होंने उनको फॉलो किया, ऑप्रेसर्स को फॉलो किया, उन दोनों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. ओके. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears. They wanted to safeguard the interests. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. Democratic principle को हमने बना के रखना है. वो majority rule, democratic principle क्या है? Equality, self dignity, right to freedom, right to freedom of religions. ओके, नो बार ऑफ अपार्थाइड. ये क्या है? डेमोक्रेटिक वे हैं. पीपल पार्टिसिपेशन, इसको बना के रखना है. They wanted to substantial social and economic rights. The white minority was keen to protest privileges and property.
साउथ अफ्रीका में बिफोर देयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट वर देयर, दैट दे वर वाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। वो अपनी प्रिविलेजेस, उनके सम्मान और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट मतलब एक इंटरेस्ट लेती थी। बट in the new South African constitution that situation is totally different. Okay, I think you are fully enjoying this lecture, and if you have any query, well, I will send a new document about knowing of South Africa constitution, तो आपने उसको explore करना है। I will send you the PDF of South African features, constitution features. Okay, thanks for listening. And at last I want to say that हर कोई दुनिया को बदलना चाहता है, that is good, but कोई दुनिया के लिए नहीं बदलना चाहता है। Just remember and think about this quote. Thank you so much. Have a great day ahead.